have discussed in our previous class that today in next lecture we will discuss about wet bulb temperature. This is also very important parameter for refrigeration and air conditioning. Particularly for air conditioning, it is very important parameter and most confusing because there is a difference between wet bulb temperature and dew point temperature, slight difference and thermodynamic wet bulb temperature. So these parameters are very important. How we reach wet bulb temperature, that we again discuss with the help of TS diagram. So let us first draw TS diagram to define what is a wet bulb temperature. Whether it is a thermodynamic property or not. Actually, wet bulb temperature is not a thermodynamic property but adiabatic saturation temperature. That is also known as thermodynamic temperature. This one is a thermodynamic property. So there is a slight difference between, very minor difference between wet bulb temperature and adiabatic saturation temperature. Both we will discuss, and by comparing both equations, we will find what is a Levi's number. That is an important dimensionless number that we are going to discuss. After defining wet bulb temperature and adiabatic saturation temperature or thermodynamic wet bulb temperature, then we will find Levi's number. This is a dimensionless number. So first we draw TF diagram, temperature entropy diagram, temperature entropy diagram for defining wet bulb temperature. And again here we will find that we are here at this point. This is a point where actual condition of the air at this point. Air is lying at this point. मतलब कि this is a saturation curve. This is a critical point. This is a liquid line, and this critical point to right side is saturation gaseous state, and from here to here it is in superheated region. So actual here you will find dry bulb temperature TdB, and there will be some vapor pressure इसका होगा PV. एंड कैसे हम इसको निकालते हैं? वेट बल्ब निकालने के लिए आपको मालूम है, जैसे ड्राई बल्ब निकालना है तो सिंपली जो एक्चुअल कंडीशन में थर्मोमीटर से जो रीडिंग मिलती है इस कंडीशन में जो थर्मोमीटर से रीडिंग मिलती है, मतलब कि इसमें कोई विक नहीं होता है, तो जो रीडिंग होती है उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब. एक्चुअल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है एयर का उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर. लेकिन हम वेट बल्ब टेम्परेचर करने के लिए क्या करते हैं, जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का उसमें पारा होता है, उसके चारों तरफ हम एक विक जो कपड़ा होता है वो गीला कपड़ा होता है उसको लपेट देते हैं. वी सराउंड थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब thermometer bulb by wick of this is a cloth wick. जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें वाटर होता है, उसको चारों तरफ लपेट देंगे. दिस बिकम है जिस तरह का डिवाइस होता है. यहाँ देखिए कैसे मेजर करते हैं. सेम thing we can measure by here. This is a thermometer, this is a bulb, and we make a wick like this. एक कपड़े का क्लॉथ का हमने यहाँ पर विक लगा दिया, तो यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ से आपको रीडिंग मिल जाएगा. दिस इज ए थर्मोमीटर. एंड एक यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, यहाँ से एयर पास हो रही है, इनलेट कंडीशन, यहाँ से एयर बाहर जाएगी. आफ्टर सैचुरेशन जो इसका एरिया बनना है ये ए है, इसका टेम्परेचर कितना है T है, और मॉइस्चर कितना है H है, सॉरी एंथैल्पी H है, और इसका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है या इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसका ओमेगा है. टेम्परेचर कितना हो रहा है इसका T डैश हो रहा है, H डैश एंथैल्पी हो रहा है, ओमेगा डैश हो रहा है इसका प्रेशर कितना है PV है, यहाँ पर वेपर का प्रेशर कितना है PV, यहाँ पर PV डैश है. PV डैश आफ्टर सैचुरेशन, फुल्ली सैचुरेशन स्टेज के बाद. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन TF डायग्राम, जब यहाँ से एयर इस कंडीशन में आएगा, ये हमारा गैसेस स्टेट होगा G और ये होगा फ्लूइड स्टेट. क्योंकि अब जब एयर यहाँ पर आ रहा है, इस स्टेज में एयर है, इनलेट कंडीशन में एयर यहाँ पर है, जब यहाँ से मॉइस्चर के ऊपर से जाएगा, इफ ये विक अराउंड बल्ब, ये वेट विक है, ये वाटर इसमें भरा हुआ है विक में, तो ये मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर का वेपराइजेशन होगा. तो ये फ्लूइड हमारे, ये फ्लूइड स्टेट में है F,
तो इन दोनों का इसका मॉइस्चर का वेपराइजेशन, जो वाटर का वेपराइजेशन होगा यहाँ से, तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर चेंज हो जाएगा PV1 और इसका जो PS1 क्या होगा, सैचुरेशन। पहली स्टेज में सैचुरेशन प्रेशर कितना होगा, PS होगा, PS। लेकिन होता क्या है, इन पहली बार जब फर्स्ट टाइम जब एयर यहाँ से पास हो गई, ड्राई एयर पास हो रही है, आफ्टर वेपराइजेशन ऑफ द वेपर, जो वेपराइजेशन ऑफ वाटर वेपराइज होगा तो वाटर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर कितना था इसका, T था, अभी टेम्परेचर डाउन हो गया, यहाँ पर पहुंच गया T1 और ये हो जाएगा F1। अब इसके बाद, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज में व्हाट इज हैपनिंग, जब ये पास हो रहा है तो जो प्रेशर इसका, जो इसमें इस समय जो PV था, PV से P1 हो रहा है, PV1 हो रहा है वेपर प्रेशर। बट जो सैचुरेशन प्रेशर वाटर का है, यहाँ पर सैचुरेशन प्रेशर वाटर का इज मच मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ द एयर। जो इसमें वेपर बन रहा है एयर में, अब इसके देखिए जो यहाँ से वेपराइजेशन हो रहा है वाटर का, इसमें मिक्स हो रहा है एयर में, तो मिक्स होकर जब बाहर आएगा तो इसका जो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, PV1 होगा। तो PV1 स्टिल लेस देन सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर, तो फिर से इसका अगेन इट विल इवेपोरेट। ये तब तक इवेपोरेट होगा जब तक कि दोनों प्रेशर बराबर, सैचुरेशन प्रेशर इज इक्वल टू वाटर वेपर प्रेशर। तो ये यहाँ से इस तरीके से डाउन होता जाएगा। अब ये T1 F1 पहले ये F1 G1, फिर यहां पर आ रहा है F2 G2 एंड F3 G3, F3 G3। एक कंडीशन ये पहुंच रही है फाइनल F डैश G डैश। इस कंडीशन में जो PV डैश है इक्वल टू PS डैश, तब तक ये वेपराइज होता रहेगा यहाँ से वाटर until unless PV dash, जो वाइपर प्रेशर ऑफ द एयर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर when both become equal, PV dash equal to PS dash when both become, this is the saturation, this is vapor pressure of the air, जो एयर में वेपर यहां से लगातार मिक्स होकर यहां पर पहुंच रही है। PV dash become PS dash, यहां पर जो सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर होगा PS dash when both become equal and further vaporization of the water will stop and pressure difference बराबर हो जाएगा। जब यहाँ का प्रेशर और वेपर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, फर्दर वेपराइजेशन स्टॉप हो जाएगा। दैट इज द लिमिट ऑफ द वेपराइजेशन। और ये जो टेम्परेचर यहाँ पर हमको मिल रहा है, दैट इज टेम्परेचर इज नोन एज ए T डैश टेम्परेचर, हमको मिल रहा है T डैश टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ए वेट बल्ब टेम्परेचर। और यहाँ पर जो टेम्परेचर था, इस कंडीशन में अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ तक आते हैं तो इसको बोलते हैं TD, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर सेम पॉइंट A से यहाँ तक सैचुरेशन पॉइंट तक आते हैं विद ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर एंड रीचिंग अप टू सैचुरेशन पॉइंट, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर TD लेस देन T डैश वेट बल्ब टेम्परेचर। और T डैश क्या है, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इस कंडीशन के लिए क्या, व्हाट इज लिमिट, जब ये कंडीशन पहुंचेगी तो व्हाट विल हैपन। तो अब जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से एक लेयर बन रही है और यहाँ से यहाँ पर वेपर ट्रांसफर हो रही है। एरिया इसका A है और इसका जो बीच का जो इस अब जो लेयर बन रही है वेपर की, जो लेयर बन रही है, इसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, FG, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर लिक्विड वेपर इंटरफेस। लिक्विड के बीच में, वेपर के बीच में जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट, क्योंकि कन्वेक्शन से यहां तक वेपर आ रही है एंड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड कन्वेक्शन ड्यू टू कन्वेक्टिव ट्रांसफर, यहां से हीट यहां तक पहुंच रही है, यहां से यहां तक वेपर पहुंच रही है और यहां से यहां तक वेपर पहुंच रही है, बाहर आ रही है। तो इसके लिए हम वी विल अप्लाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन टू फाइंड आउट वेट बल्ब टेम्परेचर।
तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होगा इसके लिए? देखिए हीट जहां से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में थ्रू कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमने लिया था एफ जी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? टी डैश टी माइनस टी डैश। टी इनिशियल टेम्परेचर था जो कि यहाँ पर था, टी एंड टी डैश जो फाइनल टेम्परेचर, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डिफिजिट मिनिमम लिमिट, क्योंकि ये टेम्परेचर जो हमारा पहुंच गया मिनिमम टेम्परेचर है। एफ जी इंटू एफ जी क्या है? कन्वेक्टिव ट्रांसफर। आपको मालूम है क्यू कन्वेक्शन इक्वल क्या होता है? एच ए इंटू डेल्टा टी, वही तो है ये। एच की जगह पर हमने लिया यहाँ पर एच ए क्या है? एफ जी है। कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमने एफ जी लिया है। एंड ए क्या है? इसका जो इंटरफेस का एरिया, ये जो एरिया है ये ए है, फिर एरिया ए। एच ए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? टी डैश फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर टी है जो कि ज्यादा है, टी ग्रेटर देन टी डैश है, टी इज ड्राइवल टेम्परेचर एंड टी डैश इज फाइनल इक्विलिब्रियम वेट बल्ब टेम्परेचर। सो एच ए दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस हीट ट्रांसफर वाटर वेपर इवेपोरेट हो रही है। मान लीजिए mv वाटर इवेपोरेट हो रहा है, mv इज मास ऑफ वाटर वेपर दैट इज इवेपोरेटेड इनटू क्या हो जाएगा? एच एफ जी डैश। ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो कि किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द वेपर फ्रॉम दिस हियर टू हियर। अब डिफ्यूज कैसे होगा? डिफ्यूज होने के लिए केडी जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इनटू एरिया इनटू क्या हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस पीवी डैश माइनस पीवी। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो डिफ्यूजन हो रहा है। इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था? पीवी था, अब फाइनल कितना हो रहा है? ज्यादा हो गया, पीवी डैश हो रहा है ड्यू टू दिस प्रेशर। ये लिमिटिंग कंडीशन के लिए है। सो एफ जी, और इसमें एक चीज हमने छोड़ दिया है दैट इज एच एफ जी डैश, क्योंकि एमवी के लिए हमने जो लिया है, एमवी यहाँ पर कितना है? एमवी इक्वल टू है के डी इंटू ए पीवी डैश माइनस पीवी। This is the equation for MV. How much water evaporated and moved from here to here? MV यहाँ पर हमने लिया। Now equating this equation, Fg into A T minus T dash equal to, इस इक्वेशन राइट हैंड साइड में रखेंगे हम KD into A into PV dash minus PV into HFG dash। ए से ए कट गया एंड टी माइनस टी डैश इक्वल क्या हो जाएगा? टी माइनस टी डैश इक्वल टू के डी इंटू एच एफ जी डैश पीवी डैश माइनस पीवी अपॉन एफ जी। एफ जी जे कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब आपको एक चीज मालूम होगा, हमने जब we have defined about specific humidity or absolute humidity, that omega is a function of PV। जो absolute humidity ओमेगा होता है वो PV का फंक्शन होता है। जो इक्वेशन हमने बताया था ओमेगा इक्वल टू 0.622 PV अपॉन T माइनस PV। तो PV जो वेपर प्रेशर होता है एयर का, और ये जो P होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ पीवी। तो इस इक्वेशन को हम ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस इक्वेशन को ओमेगा फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट केडी है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बिकॉज अगर हम पैरामीटर को चेंज करें तो वहां पर जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर चेंज होता है। तो टी माइनस टी डैश इक्वल क्या हो जाएगा? टी माइनस टी डैश इक्वल टू के ओमेगा। हमने के डी को के ओमेगा कर दिया एंड एच एफ जी डैश एंड ओमेगा डैश माइनस ओमेगा। फिर ये मोर डिफाइंड, क्योंकि हमें ओमेगा तो पहले से मालूम होता है, पीवी भी मालूम होता है, तो ये देखिए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, क्योंकि वेपर का जो ओमेगा चेंज हो रहा है यहाँ पर पीवी चेंज हो रहा है। दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो। ओमेगा डैश इज सैचुरेटेड स्टेट में कितना मैक्सिमम मॉइस्चर होगा, दैट इज कंडीशन ऑफ द ओमेगा डैश। जब यहाँ से एयर सैचुरेट होकर फुल्ली यहाँ से निकलेगी, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो उसका पर केजी ड्राई एयर जो वाटर वेपर होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये ओमेगा डैश है। और तो इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो पीवी डैश प्रेशर भी बढ़ गया। मॉइस्चर जो है उसका एयर में प्रेशर जो ज्यादा होगा,
तो ये पीवी डैश है। तो इस दिस इक्वेशन इज, अब हमको टी डैश यहाँ पर निकालना है। यू कैन फाइंड आउट टी डैश। So simply you can, by balancing this equation, you can find out T dash. So T dash equal to T minus KW H dash FG upon FG into omega dash minus omega. This is a T dash is a thermodynamic weight bulb temperature. T dash is a thermodynamic weight bulb temperature. And T is a dry bulb temperature. Q omega is a coefficient of diffusion of water vapor. H dash Fg is a enthalpy of phase transformation from water to vapor. And omega dash is a absolute humidity at saturated state. Omega is a absolute humidity at dry bulb condition. And Fg is a convective heat transfer coefficient. So this equation you can easily understand how we can use this equation, and I think you will not have any confusion now about what is a thermodynamic weight bulb temperature. This is one of the most important thermodynamic parameter, one of the most important parameter for the defining air conditioning. Air conditioning को समझने के लिए यहाँ पर weight bulb temperature is also very important. I think it will help you. Thank you very much. Please like and subscribe. Next, we will discuss about thermodynamic weight bulb temperature or adiabatic saturation temperature. This one is more complex compared to this one. Thank you very much.